Now you have done MBA from a reputed institution 3 years back but could not get campus placement due to COVID-19 generated recession. However, a lot of persuasion and series of competitive tests including written and interview, you managed to get a job in a leading shoe company. You have aged parents who are dependent and staying with you. You also recently got married after getting this decent job. Now you were allotted the inspection section which is responsible for clearing the final product. In first year, you learnt your job well and was appreciated for your performance by the management. Now the company is doing good business for last 5 years in domestic market, and this year it is decided to even export to Europe and Gulf countries. However, one large consignment to Europe was rejected by their inspecting team due to certain poor quality and was sent back. The top management ordered that the consignment to be cleared for the domestic market. As a part of inspecting team, you observed that the glaring poor quality and brought to the knowledge of the team commander. However, top management advised all the members of the team to overlook these defects as the management cannot bear such a huge loss. Rest of the team members except you promptly signed and cleared the consignment for domestic market, overlooking glaring defects. You again brought to the knowledge of the team commander that such consignment, if cleared even for domestic market, will tarnish the image and reputation of the company and will be counterproductive in the long run. However, you were further advised by the top management that if you do not clear the assignment, the company will not hesitate to terminate your services, citing certain innocuous reasons. अब आपको एक ओवरव्यू पता चल ही गया होगा कि ये केस स्टडी किसके बारे में है. यहाँ पर एक पर्सन है, आपको बोला गया है कि यू हैव डन एन MBA और आपने किसी एक जॉब को ज्वाइन किया है आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव टेस्ट परसुएशंस, क्योंकि आपको पता है जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है. तो आपने मैनेज कर लिया एक जॉब इन अ शू कंपनी. पर अब शू कंपनी में एक केस ऐसा आता है जिसमें उनका एक कंसाइनमेंट है जो कि बेसिकली यूरोप के लिए और गल्फ कंट्रीज़ के लिए बना है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज़ के वजह से उस कंसाइनमेंट को यूरोप और गल्फ कंट्रीज़ के लिए अप्रूव नहीं किया जाता है. लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस जो कंसाइनमेंट जो कि ये गल्फ और यूरोप के लिए था, इसको क्या करना है, डोमेस्टिक मार्केट में बेचना है, क्योंकि ये सामान ऑलरेडी बन चुका है, इसको वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि इसको डोमेस्टिक मार्केट में आपको सेल करना है. अब आप जो है अप्रूवल टीम में एक मेंबर हैं और आपके अलावा सब ने इसको अप्रूवल दे दिया है. आप इसको नहीं दे रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो क्वालिटी इश्यूज है ये डोमेस्टिक मार्केट के लायक भी नहीं है और यहाँ पर भी जो है ये कंपनी का रेपुटेशन खराब कर सकता है. अब टॉप मैनेजमेंट के द्वारा प्रेशर है कि आप इसको अप्रूव करें, ठीक है, क्योंकि कंपनी इतना ह्यूज लॉस जो है वो नहीं झेल सकती है. तो अब आपको इस केस में क्या करना है, इसी पर बेस आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओवरव्यू आपको पता चल गया कि व्हाट इज दिस केस स्टडी इज ऑल अबाउट. अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं. एक मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि केस स्टडी जब भी आपसे पूछा जाता है या इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एवरी एंगल को एक्सप्लोर करें. आपसे जजमेंट नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है कि किसी भी केस स्टडी अगर कोई भी केस आपके सामने आता है तो आपको हर एंगल्स के प्रोज और कॉन्स को अच्छे से देखकर स्टेट करना है. ये आपसे चेक करता है कि क्या आप सारे सिचुएशंस को हर एंगल से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे. तो इसी कारण ये बेसिक नीड है ऑफ एनी केस स्टडी और यूपीएससी भी आपसे यही उम्मीद करता है कि आप किसी भी केस स्टडी को बहुत डिटेल में जाके एनालाइज करें. Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडर द गिवन कंडीशंस व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज अ मेंबर ऑफ द इंस्पेक्टिंग टीम. क्रिटिकली इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड बाय यू. C is what option would you adopt and why. D, what are the ethical dilemmas being faced by you.
And E, what can be the consequences of overlooking the observations raised by the inspecting team? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द गिवन कंडीशंस व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज अ मेंबर ऑफ द इंस्पेक्टिंग टीम. एज अ मेंबर ऑफ इंस्पेक्टिंग टीम आपके जो अभी करंट कंडीशन दिया हुआ है, आपको आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन you have in your hand is clear the consignment as instructed by the top management overlooking the poor quality. देखिए यहाँ पर कोई भी जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है. तो सिर्फ जो अवेलेबल है उसको यहाँ पर स्टेट करिए, जितना भी पॉसिबल ऑप्शन आप सोच सकते हैं उसको यहाँ पे स्टेट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड बाय यू, उसमें हम लोग सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यू हैव टू जस्ट स्टेट द ऑप्शंस. तो हमने फर्स्ट क्या किया कि हम आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका अप्रूवल रुका हुआ है, ठीक है, और आप जो है अप्रूवल टीम में है, तो आप यहां पर एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जो ये कंसाइनमेंट है इसको क्लियर कर दें, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट भी यही बोला है, ठीक है, कि ओवरलुकिंग दी पुअर क्वालिटी आप इसको डोमेस्टिक मार्केट के लिए अप्रूव कर दें. द सेकंड ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू इज रिफ्यूज टू क्लियर द कंसाइनमेंट एंड स्टैंड फर्म ऑन योर ऑब्जर्वेशंस रिस्किंग द टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विसेज. अभी तक आप स्टैंड फर्म किए हुए अपने ऑब्जर्वेशंस में कि जो कंसाइनमेंट का क्वालिटी है वो बहुत खराब है, आप इसी पर अड़े रहिए, ठीक है, रिफ्यूज करिए क्लियर करने का, और ये जो है आपको हो सकता है कि फाइनली रिस्क कर दे और फाइनली लीड करे टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विसेज, और आपकी नौकरी जाने की जो है वो नौबत आ सकती है. द थर्ड ऑप्शन अवेलेबल इज seek guidance from higher authorities or escalate the issue to the appropriate department within the company. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर जो आपके मैनेजर है, जो टीम कमांडर है एक्चुअली, वो आपको बोल रहे हैं कि आप प्रोसीड कर जाइए, आप अप्रूव करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है और कंपनी के ग्रेटर इंटरेस्ट में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनसे ऊपर जो है हायर अथॉरिटीज है, ठीक है, उनके तक आप ये इशू पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डिसीजन ले जो कि आपको लगता है कि सही हो. तो ये एक ऑप्शन आपके पास है. इसके बाद क्या है, कंसल्ट विद कलीग्स और मेंटर्स फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू नेविगेट दिस एथिकल डिलेमा. कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी इफ द एथिकल कंसर्न्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इंटरनली. नाउ लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपके जो कलीग्स हैं, मेंटर्स हैं, ठीक है, आउटसाइड दी कंपनी भी कुछ आपके मेंटर्स हो सकते हैं, उनसे आप पूछे कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस तरह के एथिकल डिलेमा में कैसे नेविगेट करना चाहिए. और इन केस इफ आप यू हैव ट्राइड ऑल दी ऑप्शंस, आपने सारा ऑप्शंस ट्राई कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपके एथिकल बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स के अनुसार जो है डिसीजन मैच नहीं कर रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी, और आप जो है आगे मूव ऑन कर सकते हैं अपने लाइफ में. तो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इन दी गिवन कंडीशंस. हमने क्या बोला, एथिक्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एवरी पॉसिबल जो भी आप सोच सकते हैं सिचुएशन है, आपको उसको यहाँ पे स्टेट करना है. इससे पता चलता है एग्जामिनर को आप किसी सिचुएशन को कितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो वहां पर आपको ऐसा बहुत सारा कंडीशंस, ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस आएगा जहां पर आपको जो है यस और नो वाला सिचुएशन नहीं रहता है. जब भी मैटर, ग्रे मैटर बोलते हैं जिसको, कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे निकालना है, लेकिन आप ना ही एकदम यस जा सकते और ना ही एकदम नो जा सकते हैं. तो इस तरह के सिचुएशंस और इस तरह के क्वेश्चंस का यही मतलब है कि आपसे चेक किया जाए कि क्या आपने सारा पॉसिबल ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर किया था बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हमें क्या था कि यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना था ईच ऑप्शंस को. हमने ऑप्शंस यहाँ पे स्टेट कर दिया. तो फर्स्ट हमने क्या किया था कि क्लियर दी कंसाइनमेंट, ठीक है, क्लियरिंग दी कंसाइनमेंट जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था. अगर हम लोग ये काम करते हैं तो क्या इसमें क्या इसमें हमको फायदा होगा या क्या हमें नुकसान होगा, इसी तरह से आपको इसको एनालाइज करना है. अब देखिए हमने यहाँ पे काफी कम वर्ड्स यूज किया है. यू कैन यूज बुलेट पॉइंट्स ऑल्सो. आप एक एक जो डिसीजन है उसके विद इन कुछ प्रोज लिख सकते हैं, कॉन्स कर सकते हैं, इस तरह से लिखिए. और जितना डिटेल में आप जाएंगे, जितना आप डिटेल में किसी केस स्टडी को आंसर करते हैं, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लियरिंग दी असाइनमेंट. अगर आपने कंसाइनमेंट क्लियर कर दिया तो दिस ऑप्शन में सीम फेवरेबल इन दी शॉर्ट टर्म एज इट अवॉइड्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज जॉब लॉस. अगर आपने अभी क्लियर कर दिया, ठीक है, अगर आपने कंसाइनमेंट क्लियर कर दिया तो शॉर्ट टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जो है इन लाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दी आप प्रोडक्ट मैनेजर जो आपके हैं, ठीक है, टीम कमांडर जो हैं, उनके अनुसार जो उनका डिसीजन है उसके अनुसार अपना डिसीजन लिया आपने, तो आपके जॉब में कोई अभी भी मतलब अभी लॉस नहीं होगा इन दी
short term. However, it comprises ethical standards and may harm the company's reputation in the long run. अब देखिए होता क्या है, आपको वैसा काम करना है जो कि in the best interest of the company हो. अब short term में हो सकता है कि कंपनी को आप नुकसान से बचा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ये कंपनी एक जितने भी कस्टमर्स के पास ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जाएगा तो ये एक तरह से कंपनी का रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज कर दिया, क्योंकि आपको पता है वंस अ कस्टमर टेक्स अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम सर्टेन ब्रांड, उस ब्रांड का रेपुटेशन खराब हो जाता है. तो यहां पर एक प्रॉब्लम आपके लिए हो गया, एक तो ये आपके एथिकल स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है, दूसरा कि ये कंपनी के रेपुटेशन को हार्म कर सकता है इन दी लॉन्ग रन. तो हमने देखा कि क्लियरिंग दी कंसाइनमेंट का फायदा क्या है कि आप जॉब लॉस नहीं होगा, बट नुकसान क्या है कि एथिकल स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है और कंपनी के लॉन्ग टर्म रेपुटेशन को हार्म कर सकता है. द सेकेंड ऑप्शन 2 है आपका रिफ्यूजिंग टू क्लियर दी कंसाइनमेंट. अगर आपने कंसाइनमेंट को क्लियर नहीं किया तो आपका क्या है, सबसे पहले नियर कौन क्या होगा कि रिस्क ऑफ टर्मिनेशन है, आप जॉब लॉस हो सकता है आपके लिए, ठीक है, और आपके पास एक फैमिली डिपेंडेंट, आपके पास एक डिपेंडेंट फैमिली है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है. दूसरा क्या है, इट डिमॉन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड अ कमिटमेंट टू मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. इसके प्रोज क्या है कि इफ यू रिफ्यूज टू क्लियर द कंसाइनमेंट, आप जिस भी चीज में बिलीव करते हैं, जिस भी वैल्यू सिस्टम में बिलीव करते हैं, आपने उसके साथ अबाइड किया और ये आपको एक अच्छा जो फीलिंग देगा वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फीलिंग होगा. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है जॉब लॉस हो जाएगा, लेकिन आप अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमने देखा अगेन प्रोज एंड कॉन्स. इसके बाद क्या है, अगर आप सीकिंग गाइडेंस करते हैं फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, तो दिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स एस्केलेटिंग द इशू विद द कंपनी हायरार्की, होपिंग फॉर अ रिजोल्यूशन दैट अलाइंस विद द एथिकल वैल्यूज. इट कैन हेल्प शेड लाइट टू द सिचुएशन एंड पोटेंशियली लीड टू अ फेयर आउटकम. देखिए, आप टॉप कमांडर आपके पास हैं, उनका डिसीजन ये है कि आपको कंसाइनमेंट को अप्रूव कर देना चाहिए. लेकिन अगर आप हायर अथॉरिटीज में एस्केलेट करते हैं तो हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में जो हायर अथॉरिटीज हैं वो बिलीव करे कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है और लॉन्गर टर्म में ये कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं. तो यहां पर आपका प्रोज है कि दिस माइट गेट इन सम अथॉरिटीज हैंड, ये बात जो है किसी अथॉरिटीज के हाथ में आ जाए और उनको भी आपके थॉट्स के अनुसार वो अलाइन कर जाए और उनको लगे कि लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी का फ्यूचर हैम्पर हो सकता है. तो उस केस में हो सकता है कि आपके फेवर में एक डिसीजन आ जाए कि नहीं, इसको इस कंसाइनमेंट को अप्रूव नहीं करना है. एट द सेम टाइम इसका कॉन्स भी आप एक लिख सकते हैं कि अगर आप हायरार्की को स्केप करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं तो ये एक आपके बारे में एक बैड इमेज भी बनाता है कि आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं और आप चेन ऑफ कमांड्स में बिलीव नहीं करते हैं. तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ कॉन. तो आप इस तरह से प्रोज भी लिख सकते हैं, कॉन्स भी लिख सकते हैं. इसके बाद आप जो हमने कंसल्टिंग कलीग्स और मेंटर्स, सीकिंग एडवाइस फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स कैन प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. देखिए, कुछ जो डिसीजंस होते हैं या कुछ जो ऑप्शंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब में प्रोज और कॉन्स ही हो. कुछ ना कुछ हो सकता है किसी में सिर्फ प्रोज हो सकता है किसी में सिर्फ कॉन्स हो. तो जो भी आपको लगता है उसको आप लिख दीजिए. ऑब्वियसली कंसल्ट आप करते हैं कलीग और मेंटर्स को, तो हमेशा ही आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है, ठीक है, आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट जाने को मिलता है. तो आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं. नाउ रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी, लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है, इफ द एथिकल कंसर्न्स परसिस्ट एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व, रिजाइनिंग में बी द लास्ट रिजॉर्ट टू मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी. चलिए, पर्सनल इंटीग्रिटी तो आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर आप रिजाइन करते हैं कंपनी से तो आपको जो है फाइनेंशियल लॉसेस होगा और आपको पता है यू हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली ऑल्सो. यू हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स जो बिकॉज यू आर अ प्रोवाइडर फॉर द फैमिली, ठीक है, आप जो है आपके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, आपकी स्पाउस हैं. तो इसके लिए क्या है, आप जो है एक तरह से आप बोल रहे हैं कि आप सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये एक कॉन भी है. हर सिचुएशन को आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ऑप्शन वुड यू अडॉप्ट एंड व्हाई. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है. इसमें आप किसी भी मॉडल आंसर में देखेंगे वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन आपने क्यों चूज किया. अब इस समय अगर आप देखेंगे, एथिकली द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन विल बी टू रिफ्यूज द कंसाइनमेंट एंड स्टैंड फर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम. यहां पर हो सकता है कि आप ये लिखते हैं कि अगर आप क्लियर कर देते हैं कंसाइनमेंट को और आपने कोई आप हो सकता है कि कोई इनोवेटिव स्टेप ले रहे हैं, तो उसको भी अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो आपको इसमें नंबर मिल जाएगा. इसमें कोई एकदम ऐसा नहीं है कि यही वाला स्टेप ही जो है वो बेस्ट होगा, ये आप पे डिपेंड करता है और आप उस भी जो भी चॉइस को है आप उसको कितने अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं. यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू स्टैंड बाय दी योर मतलब डिसीजंस और आप कंसाइनमेंट को क्लियर नहीं करते हैं, तो यहां पर ये चॉइस क्यों प्रायोरिटाइज करता है, क्योंकि आपके लिए जो है इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एथिक्स और आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रेपुटेशन ऑफ द कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. इसी कारण इररेस्पेक्टिव ऑफ द फियर ऑफ टर्मिनेशन यू विल गो विथ योर डिसीजन.
या फिर अगर आप ये बोलते हैं कि चलिए इस कंसाइनमेंट का अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि यू विल क्लियर दिस कंसाइनमेंट, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप इस इशू को रेस करेंगे विद दी हायर अथॉरिटीज, ठीक है। एक ऐसा और पॉसिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है कि आप इस कंसाइनमेंट को क्लियर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो है हायर अथॉरिटीज के पास इस चीज को रेस करेंगे ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस सच दैट दीज इवेंट्स शुड नॉट ऑकर इन फ्यूचर ऑल्सो। तो यहां पर आप एक इनोवेटिव स्टेप भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओवर द टाइम जितना भी केस स्टडी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, और उस बेस्ट ऑप्शन को आपको कैसे जस्टिफाई करना है, ये मेन चीज है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन यू। अब यहां पर मॉडल आंसर में कौन सा बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वही आपका भी बेस्ट ऑप्शन हो। आप वैसे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, और अगर आपने उसको जस्टिफाई कर दिया तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, डी क्वेश्चन, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास बीइंग फेस्ड बाय यू। इस सिचुएशन में क्या क्या एथिकल डिलेमास आप फेस कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सिर्फ आप बताइए कि व्हाट आर दी एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय यू। आपको सिर्फ स्टेट करना है। तो हमने देखा कि ये क्या सिचुएशन है, हमने ऑलरेडी समझ रखा है सिचुएशन में कि आप एक मैनेजर हैं, ठीक है। एक शू कंपनी में एक कंसाइनमेंट आता है जो कि डिफेक्टिव है फॉरेन मतलब गल्फ और यूरोपियन कंट्रीज के लिए, लेकिन कंपनी सोचती है कि ये डोमेस्टिक मार्केट में चल जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में चलाने के लिए आपका अप्रूवल चाहिए, आप अप्रूवल देने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। हमें रफ सिचुएशन पता है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर दी एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय यू इंक्लूड। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, बैलेंसिंग पर्सनल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पर क्या है, द फर्स्ट थिंग, आपने इस चीज को ऑब्जेक्ट क्यों किया, क्योंकि आप जो है कस्टमर को वैल्यू करते हैं। आपके कुछ पर्सनल वैल्यूज है, इंटीग्रिटी है, कि आपको लगता है कि आपके हाथ से कुछ डिफेक्टिव काम नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो आपका पोटेंशियल लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है। तो यहां पर एक ये एथिकल डिलेमा अराइज हो जाता है कि हम अपने पर्सनल वैल्यूज और इंटेग्रिटी को वैल्यू मतलब कि तरजीह दें, या फिर जो है इस चीज को देखें कि हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट लॉस हो सकता है। द सेकंड एथिकल डिलेमा क्या है, अवॉइडिंग ऑर्डर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट वर्सेस अपहोल्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखिए यहां पर क्या है, जो आपके पास टीम कमांडर है, उनका जो डिसीजन है वो बेसिकली वैसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें वो क्वालिटी को तरजीह नहीं दे रहे हैं। और आपको पता है कि व्हेन यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर चेन ऑफ ऑर्डर्स होता है, तभी जो है वो सिस्टम वर्क करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि जो सीनियर मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो रॉन्ग है, और आप क्या सोच रहे हैं कि आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करना चाहिए। तो अगेन दिस इज एन एथिकल डिलेमा। एक जगह जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप चैलेंज कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप जो पर्सनली सोचते हैं कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच में आपके बीच में जो है एथिकल डिलेमास चलेगा, आपके अंदर द्वंद्व चलेगा, और इसके बीच में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एथिकल डिलेमास यही हुआ कि जहां पर आपको दो सिचुएशन लग रहा है कि वो एप्ट है, ठीक है। एक सिचुएशन लग रहा है कि सर्टेन रीजंस की वजह से सही है, दूसरा जो सिचुएशन है वो दूसरे रीजंस की वजह से सही है, और इसके बीच में टसल चल रहा है। तो इसी वाले सिचुएशन को हम लोग एथिकल डिलेमास बोलते हैं। नाउ द लास्ट एथिकल डिलेमा दैट यू आर फेसिंग इज ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली इन कन्फ्लिक्ट विद जस्टिस टू कस्टमर्स। आपको पता है एज अ सन, एज अ हस्बैंड, यू हैव सम ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है, टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका कर्तव्य टुवर्ड्स कस्टमर्स भी है कि उनको उनके पैसा का वर्थ प्रोडक्ट मिले, ठीक है। डिस्पाइट की रेपुटेशन कंपनी का कैसा है कैसा नहीं है, इसके लिए लेकिन कस्टमर जो भी पैसा पे कर रहे हैं, ऑनेस्टी जो होता है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी की जो बात आती है, कस्टमर जो पैसा पे कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इस दोनों के बीच में भी आपके पास द्वंद्व चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एथिकल डिलेमा दैट एग्जिस्ट इन दिस केस। तो हमने एथिकल डिलेमास को डिस्कस कर लिया, आपको सिर्फ स्टेट करना है। नाउ सीइंग द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशंस रेज्ड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशंस रेज्ड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम। दिस इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि इंस्पेक्टिंग टीम जो कि बैड क्वालिटी को नजरअंदाज कर रही है, इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है। फर्स्ट, कंपनी रेपुटेशन में सफर बोथ डोमेस्टिकली इन इट्स पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट्स लीडिंग टू अ लॉस ऑफ ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप डोमेस्टिक में कोई भी प्रोडक्ट चला दीजिएगा तो एक्सपोर्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज बहुत खराब हो जाता है तो आपको पता है ये जो आप जो शूज एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ये एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद क्या है, कंपनी में फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है और कस्टमर बहुत हाई प्राइस पे करता है फॉर अ वेरी पुअर प्रोडक्ट, तो आपके पास प्लेथोरा ऑफ कंज्यूमर केसेस आ सकती हैं। कंज्यूमर जो है आपके अगेंस्ट जा सके, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है आपके लिए, और ये जो है फर्दर आपके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा
टैम्पर कर सकता है, हैम्पर कर सकता है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन कुड बी नेगेटिवली अफेक्टेड इफ एथिकल स्टैंडर्ड्स आर कॉम्प्रोमाइज। देखिए, आप सही हैं, आप बिल्कुल एथिकली काम कर रहे हैं, आप कंपनी के ग्रेटर इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके डिसीजंस को सरपास कर दिया जा रहा है तो ये एक मोरल और मोटिवेशन को भी डाउन करता है एम्प्लॉयज के, और उनको लगता है कि यहां पर मोरालिटी के साथ काम करने का या एथिकलिटी के साथ काम करने से कोई फायदा नहीं है, और आपको जो है एक तरह से आप ये गलत एग्जाम्पल्स अपने कंपनी में जो है आप बना रहे हैं कि आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी सिचुएशन में जो सबसे बेस्ट चीज होता है उसको आपको करना है। तो दिस अगेन सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंस इन द कंपनी। द फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी कुड बी अंडरमाइंड ऑब्वियसली। वंस रेपुटेशन डैमेज हो जाता है, फिर वो डैमेज जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से स्प्रेड करता है, और आप जो है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कंपनी भले इस कंसाइनमेंट को अप्रूव कर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है कंपनी जो है ऑलमोस्ट क्लोज होने के कगार के पे आ सकता है कि अगर इसका प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं हो। तो बहुत सारा यहाँ पर जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को देखा, और क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, केस स्टडी में जितने भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकते हैं उसको आपको स्टेट करना है और उसको एनालाइज करना है। देखिए, केस स्टडी में मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि यूपीएससी जो है आपसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करिए, लेकिन वाइल डिसाइडिंग आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किए हैं या नहीं किए हैं, ये मैटर करता है। तो इसी कारण जब भी आप केस स्टडी के क्वेश्चन को देखें, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, तो जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर 3 सोच पा रहे हैं तो उससे भी अच्छा, और अगर आप 5-6 ऑप्शंस भी सोच पा रहे हैं तो ये और भी अच्छा है कि एग्जामिनर को लगे कि आपने हर पॉसिबल सिचुएशन को अच्छे से एग्जामिन किया है, अच्छे से देखा है, और तब जाके आप जो है डिसीजन लेने के एक सिचुएशन में आ गए। तो केस स्टडी इसी का यही मतलब होता है, केस दिया जाएगा, उसको आपको डाइसेक्ट करना है इनटू स्मॉल सिचुएशंस, और फिर आपको उसके हिसाब से अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। बहुत राइट या रॉन्ग पे आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें, बस आप ये बता दें कि ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।